anniversary of our founder, late Tribhuvan Singh ji. He was born on 14th January 1937 in Sonipur village in Jaunpur. His father name was Rajdev Singh and his mother name was Mrs. Chandravati Devi. In 1953 he appeared in class 10th and in 1955 he appeared in class 12th and passed those both examinations with the first division with cooperative inter college. After it he entered in Banaras Hindu University for doing the graduation in BA, and after when he completed the graduation in BA he appointed as the English lecturer of the TD College. After doing when he appointed as the lecturer of TD College, he served his job for 10 years there, and when he served his job for 10 years there like lecturer, he did not interested in teaching in inter colleges. Then he started to pursuing the higher education, and again for higher education he went to Kasim Hindu University and admitted himself in the M.Ed. M.Ed is a degree in science, and when he admitted himself in M.Ed in science, he again became the government teacher, government inter college teacher. Everyone listen properly. Currently I am telling in English, I will tell you in Hindi also. At first listen it. After working in teaching continuously for 10 years, his mind did not engage in teaching work of inter college, and he moved towards the pursuing higher education. He take the admission in PhD. Sayaji Rao Gaikwad University, Baroda. And when he admitted in Baroda for doing the PhD, and there he met very great persons, very great personalities, and he learned the micro teaching. Micro teaching means Sukshma Shikshan. And after he was appointed as the spokesperson of Banaras Hindu University and gradually progressed to the position of professor. His dedication again touched the sky and appointed as coordinator of Banaras Hindu University. He held this post till the end of life, and he presented 100 research papers at home and abroad to the foreign also. Due to special attachment to the education and teaching, he planted education seed named as Nehru Balodyan, which has now grown into the huge banyan tree. आइए इनका जीवन परिचय हम हिंदी में समझते हैं। किसी का जीवन परिचय पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जन्मदिन याद कर लें और मृत्यु दिवस याद कर लें। तो इनका जन्म 14 जनवरी 1937 को हुआ एक साधारण किसान परिवार में। साधारण किसान परिवार मतलब मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, और इन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की। हिंदी मीडियम प्राइमरी स्कूल से की, 5 तक की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ना करवाकर ये सरकारी विद्यालय से 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1953 और 1955 में क्रमशः पास की है। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स पे कि एक साधारण फैमिली में जन्म लिया इन्होंने, और 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1953 अथवा 1955 में क्रमशः फर्स्ट डिवीजन से इन्होंने पास किया। उसके बाद ये काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में बीए करने के लिए चले गए, और सन 1957 में बीए की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। टीडी कॉलेज जौनपुर से बीएड करने के पश्चात टीडी कॉलेज जौनपुर में अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हो गए। अब सोचिए कि यहीं से पढ़े थे और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए करने के पश्चात टीडी कॉलेज से बीएड किया, और जिस कॉलेज से बीएड किए फिर उसी में इंग्लिश लेक्चरर के तौर पर अपॉइंटेड हो गए, उनकी नियुक्ति हो गई। तो थोड़ा सा संघर्ष आप लोग समझते जाइए कि एक साधारण फैमिली में जन्म लेते हैं, कहाँ से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करते हैं, कहाँ से बीए करते हैं, और फिर टीडी कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर हो जाते हैं। तो कुछ वर्षों तक यहाँ सेवा करने के पश्चात राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ में अध्यापन कार्य किया। तो टीडी कॉलेज में पढ़ाते थे, उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज मतलब नेशनल इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए गए। लगातार 10 वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के बाद इनका मन इंटर कॉलेज के अध्यापन कार्य में नहीं लगा। अब आप लोग शांत रहिए और समझिए कहानी को।
कि 10 वर्ष लगातार अध्यापन करने के बाद इनका मन लगा नहीं टीचिंग में, और इन्होंने ठानी कि मुझे और भी आगे बढ़ना है, मेरे अंदर तो और कैपेसिटी है, मेरे अंदर और पोटेंशियल, मैं और आगे जा सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी बस ये इंटर कॉलेज के मास्टरी तक नहीं है, मैं इससे ज़्यादा भी कुछ कर सकता हूँ। अपने ऊपर इन्होंने विश्वास दिखाया और उसके बाद ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमएड करने के लिए चले गए। ध्यान से समझिए कहाँ से शुरू होती है कहानी, कहाँ पहुँच गई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमएड करने के लिए चले गए विज्ञान संकाय से, और जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए और एमएड जब इन्होंने पास किया, वहाँ से एमएड की डिग्री हासिल की, उसके कुछ वर्षों बाद ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब पा गए, गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद सरकारी इंटर कॉलेज में ये पढ़ाने लगे। तो सोचिए साधारण फैमिली में इनका जन्म हुआ, फिर 10वीं 12वीं की परीक्षा पास किए, टीडी कॉलेज में ये इन्होंने नौकरी की, फिर बाद में ये सरकारी टीचर हो गए। आप लोग यहाँ से समझते जाइए कि क्या क्या हुआ इनके साथ। फिर सरकारी कॉलेज में जब ये टीचर हो गए, नेशनल इंटर कॉलेज में सरकारी तौर पे, तो इन्होंने सोचा कि मुझे तो अभी और आगे बढ़ना चाहिए, मेरी ज़िंदगी तो बस यहीं तक नहीं है। अपने पोटेंशियल को पहचाना इन्होंने कि अभी हमको और आगे बढ़ना चाहिए, और इन्होंने निदेशक, उत्तर प्रदेश निदेशक, शिक्षा निदेशक से जो है अपील की, लेटर लिखा कि हमको कुछ वर्षों तक महोदय छुट्टी दे दीजिए, मैं और आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। लेकिन निदेशक ने जो है इस चीज़ को नहीं माना, निदेशक ने इस चीज को इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते। ध्यान से कहानी सुनते जाइए आप लोग, ये जीवनी है इनकी और कुछ ना कुछ इससे आज सीख कर जाइए। निदेशक ने मना कर दिया कि हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते हैं, और सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो किस चीज की कमी है, लेकिन अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने। सोचिए कि जो सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दे, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, उसके अंदर का डिटर्मिनेशन, डिवोशन, फेथ कितना ज्यादा रहा होगा। सरकारी नौकरी कर रहे हैं लेकिन और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने चले गए। देखिए कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। अब सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने चले गए, वहां पे ये कुछ महान लोगों के संपर्क में आए और वहां पे इन्होंने माइक्रो टीचिंग में जो है विशेषज्ञता हासिल की। वहां पीछे आप लोग बात कर रहे हैं, बात मत करिए, आप लोग बात मत करिए, आप लोग बहुत बात कर रहे हैं, वहां जो पीछे सब लोग बैठे हुए हैं। तो सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद वहाँ पे कुछ महान व्यक्तित्व के लोग इनको मिले और वहाँ से इन्होंने माइक्रो टीचिंग में विशेषज्ञता हासिल कर ली। और इनका एक क्रमशः जो ये आगे बढ़ने की इनकी चाह थी, इसी दौरान ये रुहेल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए। सोचिए अगर वो सोच लेते कि बस हमारी ज़िंदगी तो यहीं इंटर कॉलेज तक है, यहीं घर पे रह जाते, बनारस तक अपनी छाप छोड़कर आए, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए। उसके बाद ये रुहेलखंड गए, रुहेलखंड विश्वविद्यालय में डीन के पद पर सुशोभित हुए। ध्यान से समझते जाइए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ वर्षों के बाद, कुछ वर्षों तक कार्य करने के बाद इनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। इनको समन्वयक, हर टीचर स्टाफ का जो कोऑर्डिनेटर होता है, देखभाल करता है, उस यूनिवर्सिटी का इनको कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। और यही काम, कोऑर्डिनेटर का काम उन्होंने अपने जीवन के अंत समय तक किया। सोचिए कहाँ से शुरू हुए। साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ, 10वीं 12वीं की परीक्षा गांव से ही पास किया, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए किया इन्होंने, उसके बाद टीडी कॉलेज से बीएड किया और टीडी कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर हो गए। अब टीडी कॉलेज में कोई इंग्लिश लेक्चरर हो जाएगा तो वो नौकरी थोड़ी छोड़ना चाहेगा, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की आत्मविश्वास को पहचाना और वहाँ की नौकरी छोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सरकारी नौकरी को भी ठोकर मार दी कि नहीं साहब, हमें सरकारी नौकरी नहीं, हमें तो खुद सरकार बनना है। तो सरकारी नौकरी को भी ठोकर मार दी और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालय में डीन के पद पर सुशोभित हो गए। और इस चीज़ को इन्होंने अंत समय तक संभाला।